Okay, so welcome students. I'll continue from where we had left in this exercise of long division method from question number 6. What is given in question number 6 is that they have given you the area of a square field. एक square field है जिसका area दे रखा है, and then there is this boy who is going cycling around this square field, जो उसके चारों तरफ square field के चारों तरफ साइकिल चला रहा है, ठीक है, and with a speed of 18 km per hour. The speed of cycling is 18 km per hour. You have to find out how much time would he take to complete the round of the square field and come back to the point of starting. जिस point से उसने start किया था और उसने चारों sides cover करके वापस उस जगह पे आया. So how much time would it take? So starting with the solution, so suppose this is a square field, area is given 60,025 meter square, and you have to find the time taken, right? So side of square, to find the side of square, what we will do, we will find the square root of the area. So for finding the square root of the area, we will find the square root by long division method. So 6, we'll write it down 60,025, okay, and with the help of, you can find now from here, you can use any method to find the square root, whatever method you prefer and you find easy to do, okay. I'll do with long division method only because I find it very easy and to find the square roots, okay. So pairing up from the last 25, then both the zeros and then 6 alone. So first of all, we will take it with 2. 2 2s are 4. Right, 4. Do the subtraction. You will get 2 is you will get 2, and then bring down both the zeros. Next pair both the zeros. So the number has become 200. Now 2 plus 2 is what? 4. And at this step we will add a new digit. So 40. We can add any number, but after calculation we have got what? 4. So adding 4, so 44 4s are is 176. Okay, so 44 4s are is 176. Right, 176. We will do the subtraction. 4 9 minus 7 2, and then bring the next pair down. This has become 2425. This side 44 plus 4, this 4 we'll add with 44, this will become 48, and put a dash over here, okay. So 480 we have 48 and a dash here, we'll put 5, so this will become 485. 5s will get exactly 2425, and the square root or long division method is complete. So द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो एक स्क्वायर फील्ड था उसका एक साइड कितना बड़ा होगा? 245 मीटर, ओके. नाउ साइड हमने निकाल लिया. हमें क्या निकालना है? जस्ट कीप इन माइंड, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम, ठीक है. टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी डोंट नो द डिस्टेंस. अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है distance which the boy has traveled, or the man which has traveled, is equals to the sum of all sides of the square. उसने चारों sides को cover किया, ठीक है. So sum of all sides of the square which is also the perimeter of the square, ठीक है. तो distance निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 into साइड्स. तो हमें साइड्स की जरूरत थी. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर की फील्ड की साइड निकाल ली है, विच इज 245 मीटर. नाउ द स्पीड विच दे हैव गिवन अस इज इन किलोमीटर्स पर आवर, और जो साइड निकला है वो मीटर्स में निकला है. तो पहले तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. 245 मीटर इज इक्वल्स टू 245 अपॉन 1000 किलोमीटर. 3 zeros ने तो मूव किया 0.245 किलोमीटर, ये बन गया, ठीक है. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिंग, कितना डिस्टेंस कवर किया है साइकिलिंग से, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into साइड.
साइड कितना था 0.25 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय साइकिलिंग इज 0.980 किलोमीटर. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है. टाइम, अब हमें डिस्टेंस पता चल गया है, स्पीड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख लिया, स्पीड की जगह स्पीड लिख ली और इसे सॉल्व किया. सो व्हाट वी हैव गॉट इज 0.0544 आर. ठीक है, 4 डिजिट तक हमने कैलकुलेट किया. अब क्योंकि ये आर, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं. ठीक है, इफ यू लीव इट टिल हियर आई विल गिव यू मार्क्स. ठीक है, मगर अगर आपको पीछे से अपनी बुक में पीछे से आंसर मैच कराना है तो दैट आंसर इज गिवन इन सेकेंड्स. सो हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद कन्वर्ट करेंगे. 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. So 0.544 into 3600, that would be how much? 195.84. 195.84. अब आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में निकालेंगे. ठीक है, राउंड ऑफ किया, दिस वैल्यू इज मोर देन 50. ठीक है, तो ये 0 हो गया एंड यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा. तो 195.84 क्या बन जाएगा, 196 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सो टाइम टेकन इज 196 सेकेंड. आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपके टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया एंड दैट आई हैव गिवन यू इफ द ऑप्शंस आर गिवन इन आवर्स, सो आप उसको आवर में कैलकुलेट करेंगे. अगर सेकेंड्स में दिए हुए हैं तो आप सेकेंड तक आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, वहाँ पे चॉइस नहीं रहती क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है आंसर. मगर अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे आता है तो आप यहाँ तक भी क्वेश्चन करके छोड़ सकते हैं अनलेस दे हैव मेंशन कि टाइम को सेकंड्स में निकालना है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर इज एन आर्मी. कुछ सोल्जर्स हैं आर्मी में एंड देयर आर 8289 सोल्जर्स. और ये जो सोल्जर्स हैं उन्हें अरेंज किया गया है इन रोज. ठीक है, जैसे आप असेंबली लाइन में रोज में खड़े हो रहते हैं. ठीक है, तो उन्हें ऐसे अरेंज किया गया, इतने सारे सोल्जर्स हैं और उन्हें इस तरह से अरेंज किया गया कि जितनी रोज हैं उतने ही सोल्जर्स हर रो में. मतलब कि अगर देयर आर 5 रोज तो हर रो में 5 सोल्जर्स आ रहे हैं. और इस तरह के अरेंजमेंट करने के बाद उनके पास कितने सोल्जर्स बच जा रहे हैं, 8 सोल्जर्स बच जा रहे हैं. एक्स्ट्रा हैं वो, मतलब कि वो इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहे हैं, एक्स्ट्रा लगेंगे. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर रो में कितने सोल्जर्स हैं. ठीक है, हाउ मेनी सोल्जर्स इन ईच रो, इसको काउंट करके बताना कि हर रो में कितने सोल्जर्स हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 8289. ठीक है, उन सोल्जर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जितने सोल्जर्स हर लाइन में हैं उतने ही रोज बने हुए हैं. अगर 5 सोल्जर्स हैं एक लाइन में तो 5 लाइन्स हैं इस तरह. ठीक है, इस तरह से अरेंज किया गया है. ठीक है, और इस तरह से अरेंजमेंट बनाने के लिए उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बच गए हैं. कितने एक्स्ट्रा बच गए हैं, 8 सोल्जर्स एक्स्ट्रा बच गए हैं. वो उस पैटर्न में फिट नहीं हो पा रहे, मतलब कि हो सकता है उन्होंने अरेंज किया हो लेकिन वो इक्वल नहीं बैठ रहे हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, तो वो इतने एक्स्ट्रा हैं. तो बस पूछा है कि हर रो में कितने सोल्जर्स हैं. सो नंबर ऑफ सोल्जर्स अरेंज इन स्क्वायर फॉर्म. पहले तो 8 टोटल तो थे, इतने सारे एक्स्ट्रा निकल आए 8. तो एग्जैक्टली कितने ऐसे सोल्जर्स थे जो अरेंज हो पाए इस स्क्वायर फॉर्म में. सो 8289 में से 8 माइनस किया, वी हैव गॉट 8281. इतने सोल्जर्स हैं जो इस फॉर्मेट में अरेंज हो पाए. ठीक है, ये 8 एक्स्ट्रा हटाने के बाद इतने सोल्जर्स वो हैं जो प्रॉपरली अरेंज हो गए. ठीक है, इस फॉर्मेट में. अब हमें बस ये निकालना है कि हर रो में कितने सोल्जर्स हैं. तो ये निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, नथिंग एल्स. सो 82 81 लिख लिया, पेयरिंग अप कर ली. सबसे पहले गया 9 टाइम्स, 9 9 81, 1 बचा, 81 ब्रिंग डाउन. देन 9 + 9 इज 18 और यहाँ पे एक डैश लगेगा. 181 लिखा हुआ यहाँ पे, 1 टाइम ही जाएगा. 181 1 = 181. प्रॉपर सब कुछ कैंसिल हो गया. सो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो वुड बी हाउ मच, 91. मतलब कि 91 रोज बनेंगी और हर रो में 91 सोल्जर्स होंगे, तब ये पूरा फॉर्मेट क्रिएट हो पाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो 1750 में ऐड करने पर
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। ठीक है, हमें वो एक स्मॉल 1750 इज नॉट ए स्मॉलेस्ट नंबर, एक नंबर दिया हुआ है 1750। ठीक है, अब हमें वो एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो हम 1750 में ऐड कर सकें, ताकि वो जो नया नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 1750 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, ये देखने के लिए कि ये जो नंबर है ये किस नंबर के आसपास का स्क्वायर रूट हो सकता है। सो पेयरिंग इट अप, सबसे पहले आया 17, तो 4 4 जा 16, 1 बचा और 50 नीचे आ गया। यहाँ पे 4 + 4 8 और एक नया नंबर ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड देन डैश, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 81 1 जा 81, माइनस किया तो कितना बचा 69। रिमाइंडर बच रहा है तो यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, अगर रिमाइंडर बच रहा है, अगर नहीं बच रहा है तो देन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। व्हाट वी हैव टू सी इज दिस 41। ठीक है, 41 का स्क्वायर, ये नंबर 41 का तो स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 41 का स्क्वायर होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है यानी 41 के स्क्वायर से बड़ा है, तो हमने इस लाइन को लिखा इस तरह से, 41 के स्क्वायर से 1750 इज ग्रेटर देन 41 का स्क्वायर, मगर यही नंबर 42 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, होगा ही। ठीक है, 41 और 42 के बीच में नंबर कहीं फॉलो कर रहा है, यानी 41 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर के बीच में नंबर कहीं फॉल कर रहा है। ऑलराइट, जैसे कि जो 3 है या फिर कहें जो 13 है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में फॉल करता है, यानी कि 9 और 16 के बीच में फॉल करता है, यानी सही कह रहे हैं हम, 13 9 और 16 के बीच में ही फॉल करता है। तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर और 16 क्या है 4 का स्क्वायर। वैसे ही ये जो 1750 है वो 41 कहाँ से लेकर आए, यहाँ से लेकर आए हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं सोच लिया। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट मेथड से जो इसका क्वेश्चन आया है वहाँ से उठाया कि ये जो 41 का स्क्वायर है 41 का स्क्वायर से तो बड़ा है डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए 41 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 41 का स्क्वायर बट लेस देन द नेक्स्ट नंबर, 42 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो पहले इससे तो बड़ा, ये तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम 42 का स्क्वायर जरा निकाल लेते हैं। 42 का स्क्वायर इज 1764। ओके, कितना डिफरेंस है 1750 को 1764 बनाने में, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस निकाल लो। 1764 में से 1750 माइनस किया, हाउ मच इज लेफ्ट 14, यानी कि अगर हम 1750 में 14 ऐड कर दें तो जो नया नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, और ये नया नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है 42 का। सो देयरफॉर 14 is the smallest number which should be added to 1750 to make it a perfect square number. तो ऐड किया 1750 में 14, the number has become 1764। अब इन्होंने आगे ये भी पूछा है कि जो नया नंबर बन रहा है उसका स्क्वायर रूट क्या है। सो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, पेयरिंग अप करेंगे फिर से। 4 4 जा 16, क्या बचा 164, अगेन 4 + 4 8, यहाँ पे डैश लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो 82 2 जा 164। So therefore 1764 is square of 42, या square root of 1764 is 42. Okay, moving on to the next question। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो दिखने में बहुत सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन है बहुत इजी। इसमें 2 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो द नंबर इज, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 अलग अलग नंबर हैं, एक तो बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट 59.29 माइनस रूट ऑफ 5.29 होल अपॉन 59.29 प्लस रूट ऑफ 5.29। ठीक है, तो इसमें ये जो 59.29 है वो 2 बार रिपीट हुआ और 5.29 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम पहले इन दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सो 59.29 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने पेयरिंग अप की, तो 7 7 जा 49, 10 बचा, पॉइंट लगा दिया एंड देन 29 नीचे उतारा। 4 + 4 इज 7, 7 + 7 इज 14, यहाँ पे एक डैश लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऐड करने पे दिस विल गिव 147, 7 जा 1029, क्रॉस हो गया, यानी कि रूट 59.29 का रूट है 7.7। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 5.29, पेयरिंग इट अप, पहले 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया,
29 नीचे लेकर आए, 2 + 2 = 4, यहाँ पे आएगा डैश, ठीक है। अब 43 3 इज 129, क्रॉस कर दिया। अब दोनों के स्क्वायर रूट्स हमें मिल गया। 5.29 का स्क्वायर रूट इज 2.3। नाउ प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, ये रहा क्वेश्चन, होल अंडर रूट ऑफ 5.59.29 माइनस अंडर रूट ऑफ 5.29 होल अपॉन 59.29 प्लस अंडर रूट ऑफ 5.29, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो अंडर रूट 59.29, तो ये अंडर रूट 59.29 की वैल्यू कितनी है 7.7, तो अंडर रूट 5.29 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे हमने क्या 7.7, देन बीच में माइनस का साइन लगा था। सिमिलरली अंडर रूट 5.29 की वैल्यू इज व्हाट 2.3, तो ये वैल्यू हमने अंडर रूट 5.29 की जगह हमने 2.3 लिख ली ऊपर, ठीक है, ऊपर हो गया। फिर दिस नंबर 59.29 इज नॉट अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पे नहीं है, तो ये जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही कॉपी डाउन करेंगे, बीच में प्लस एंड देन अगेन अंडर रूट ऑफ 5.29 इज 2.3। सो दिस इज द नंबर विच वी हैव गॉट, ठीक है। नाउ 7.7 में से 2.3 माइनस किया तो व्हाट वी हैव गॉट 5.4 अपॉन 59.29 में 2.3 प्लस किया तो व्हाट वी हैव गॉट 61.59, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये हो सकता है तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो 3 1 = 3, 3 8 = 24 अपॉन 3 2 = 6, 3 0 0 पॉइंट लग गया, 3 5 = 15, 3 3 = 9। अभी इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से, ठीक है। तो हमने इसको स्क्वायर रूट में रखा हुआ, जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है ना, अभी ये वाला फॉलो हो रहा है, अंदर वाले सब सॉल्व हो गए। बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर 1.8 अपॉन 20.53 है, ठीक है। देन रिमूविंग द डेसिमल्स, तो डेसिमल रिमूव किया 1.8 अपॉन 20.23, ये डेसिमल रिमूव किया 1 0 बढ़ा, ये डेसिमल रिमूव किया 2 0 बढ़े, ठीक है। एक एक कैंसिल हो गया, तो नंबर हैज़ बिकम 180 अपॉन 2023 अंडर स्क्वायर रूट, ओके 2053 एक्चुअली 53 है ये, ठीक है। सो दिस इज द नंबर विच वी हैव गॉट। नाउ अब इसका क्या करना है, डिवीजन, इन दोनों नंबर्स का सिंपल डिवीजन करना है डेसिमल वाला, ठीक है। उसे सब हमने सॉल्व किया तो विच व्हाट वी हैव गॉट अंडर रूट 0.0876, ये सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से नहीं आएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ ऐसा कुछ नहीं किया है जो पहले आपने नहीं सॉल्व किया हो, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस डेसिमल नंबर 0.0876। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट 0.0876, ठीक है। तो पेयरिंग अप की, पहले 0 की, 0 टाइम्स चला गया, फिर आफ्टर डेसिमल पहले 2 डिजिट्स क्या हैं 08, तो 2 2 = 4, ठीक है। 2 2 = 4 हो गया, इसमें से 8 में से 4 गया, 4 बचा, 76 माइनस कर दिया, 76 कॉपी डाउन किया तो 476 बन गया। देन 2 + 2 = 4 और यहाँ पे हमने एक डैश ऐड किया, सो ना यहाँ पे 9 ऐड करके 49 9 = 441 माइनस किया, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 4 गया 0। देन हमारे पास अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन डिजिट्स ख़त्म हो गए, सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन ऐड ज़ीरोज़, ठीक है। हम 2 या 3 डिजिट तक ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, तो ब्रिंग डाउन द ज़ीरो, सो दिस हैज़ बिकम 3500, 49 में 9 ऐड किया तो दिस हैज़ बिकम 58, एक डैश बढ़ा दिया, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद 58, अब यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 585, 5 = 2925, माइनस किया क्या बचा 575 बचा, फिर से एक पेयर ऑफ ज़ीरोज़ नीचे लेकर आए, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ये कितना हुआ 585 में 5 ऐड करना है तो दिस विल बिकम 590 और यहाँ पे एक नया नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो उस नया नंबर को जब हमने ऐड किया तो कितने बार गया, सी 9 टाइम्स, आई हैव नॉट रिटन 9 हियर, 9 टाइम्स
ठीक है, तो 59,909 को 9 टाइम्स लेकर जाएंगे तो दिस इज द वैल्यू विच वी विल गेट. माइनस कर, कंप्लीट नहीं हो रहा है बट वी हैव टेकन इट अप टू व्हाट 4 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, सो द फाइनल आंसर विच यू हैव गॉट इज 0.2959. So this is the exact value or final answer for the given question.